I hope everybody can see my screen right now. सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yeah. Okay. So today's agenda is जो हम लोग पिछले दिन कर रहे थे कि हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हमें टेबल के ऊपर क्वेरीज करनी है. ठीक है. So how we can create the tables that we are talking yesterday. We will continue from there, and we will be creating tables today. And after that, we will be starting our queries. Okay. The main thing in a DBMS that we do is to query the database. So today's agenda is creating a table and inserting records in it. Okay. तो मैंने इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था. जिनके पास इंस्टॉलेशन है वो इसको कर सकते हैं. जिनके पास इंस्टॉलेशन नहीं है दे कैन ट्राई इट. ना कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने बताया कहाँ से इंस्टॉल करना है. ठीक है. बिकॉज इंस्टॉलेशन ऑफ MySQL इज कंपैरेटिवली इजीएस्ट एज कंपेयर टू एनी अदर. कोई भी दूसरे इंस्टॉलेशन के मुकाबले सबसे आसान होता है. एंड इट्स टेक द मिनिमम ऑफ द स्पेस ऑन योर सिस्टम. ओके. ठीक है. सो हम कहाँ कमांड लिखकर किस तरह से एंट्री कर सकते हैं, दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. सो यहाँ पर हमारा पहला वर्क जो है वो क्या करना है कि वी हैव टू क्रिएट. हमें जानना है कि ये डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था पिछला दिन, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट. सो आई हैव क्रिएटेड अ होल स्क्रिप्ट हियर. ये हम एक बार में रन कर सकते हैं या साइड बाय साइड वन बाय वन आप कर सकते हैं. सो जस्ट टू टेक द सिंटैक्स. ओके. सिंटैक्स जानने के लिए क्या करना है, जस्ट लुक एट वन टेबल. वी विल बी क्रिएटिंग मोर. जो भी टेबल बनेगा वो डेटाबेस के अंदर बनेगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड आफ्टर दैट यू विल बी क्रिएटिंग द टेबल्स. ठीक है. तो उसमें जाने के पहले जरा सिंटैक्स को बेटर वे में समझ लें. व्हाट आर द सिंटैक्स हियर? It is from here to here. This is the syntax of creating table. There is a command that if there is already a table, you delete it. Okay. If it is needed. Sometime for the sake of practice, we create same table again and again with different options. Okay. Otherwise, this is not necessary at all and not recommended at all. अगर आपके पास table है, में data है, if you must save your data first. तो it is for the training purpose के लिए हम लोग पहले जो we create the tables with the same name with different options sometime just to test. That is why it is there. Otherwise, it is not necessary. So the command here is create table and the name of your table. Then field name. And after that field name, data type. So what data type you will be choosing? I'm just repeating what data types are available and which one you can utilize. There are so many of the data types here. You can check from the documentation itself. Data types. Just go to their official documentation. Here you will find a lot many type of data types. Okay. Lot many types. Just not talk about the numeric data types. You will find that there are so many of them. Okay. So which one to use at which situation? It depends on how much, what is your data is going to be. Suppose your data should be a number between 1 to few thousands, then necessarily you don't need a data type that can hold millions. Okay, because it will be taking more space on your memory. Okay. So when we talk about database, we talk about keeping
millions, even billions of records. Okay, so even a bit extra unnecessary at each record is going to cost you huge. That is in the terms of memory and storage. That is why you should go for the smallest data type, because at the training place we are just creating small tables, and all the values will be there, will be small. So uh, things like integer and decimal, it is more than enough. Okay, and what about the other data types where you will be keeping name and things? So three type of data type is most important that you must use. In most of the cases, number is a numeric data type. Other is the string data type. String means name, product name, course name. Such will be string data type. So we will be using here in most of the time this varchar type. Okay, what is this varchar? So just see the command that is written for this. These are varchar 10 means initially 10 places given, but if the name, the length of name is more than 10, then it will not truncate that. कैर होने पर क्या होगा कि अगर 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो सिर्फ 10 कैरेक्टर को वो रखेगा, बाकी सारों को वो डिस्कार्ड कर देगा. बट इफ यू टेक वैर कैर, वैर मींस वैरिंग नंबर ऑफ कैर्स, तो ऐसे हालत में आपने डिफाइन किया हुआ 10, लेकिन कोई नाम आपने एंट्री किया which has say 15 characters, it will keep it. वो उसको डिस्कार्ड नहीं करेगा कि फर्स्ट 10 कैरेक्टर रखा बाकी छोड़ दिया. That is the difference between varchar and char. So a safe bet, you use varchar. Okay, and those people who are interested in Oracle, वहां पर भी ये सारे डेटा टाइप होते हैं. varchar की जगह वहां पर varchar2 होता है. ठीक है, the same concept everywhere. ठीक है, तो these are the fields and data type. देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसको लगाते हैं कांस्टेंट, जो मैं पिछले दिन बता रहा था. कांस्टेंट्स कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं? जनरली दीज आर द कांस्टेंट. नॉट नल, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, डिफॉल्ट एंड चेक. ठीक है, नॉट नल्स लगाने का मतलब है कि उस पार्टिकुलर फील्ड में वैल्यू डालनी ही है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं. ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू गिव अ वैल्यू देयर, जहां भी है नॉट नल. ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है से हायर डेट, कि किस डेट को होगा, है ना, उसने हायर किया गया. नॉट नल मीन्स वहां पर वैल्यू डालना है. यहाँ पर सबके डिफॉल्ट नल कहने का मतलब है कि नल अलाउड है ना. आई हैव टू वर्जन ऑफ द टेबल, वन में हमने नॉट नल किया और बाकी में डिफॉल्ट नल कर दिया है. ठीक है, आप यहाँ पर नल रख सकते हैं, बट क्या बोलेंगे कि नहीं हार्ड डेट देना ही देना है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नॉट नल लिख देंगे. ठीक है, और ये डिफॉल्ट कीवर्ड है. इसका मतलब है कि अगर कोई वैल्यू नहीं दिया जाए तो वहां पर वो नल लेगा. यू कैन हैव एनी अदर वैल्यू. ठीक है, कि अगर सपोज जॉब वेर 9 डिफॉल्ट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्लर्क, कि कोई भी जॉब एंट्री नहीं करेगा तो वहां ऑटोमेटिकली क्लर्क ले लेगा, तो डिफॉल्ट में वो वैल्यू रख सकते हैं. So this is about null, not null, and default. And apart from the most important here, the primary key foreign. Just going before that, you value that is entered cannot be repeated. Means किसी एक रिकॉर्ड में वो वैल्यू आ गई, वो दूसरे में नहीं आएगा. ठीक है, सपोज each student is given a separate project, है ना. हर स्टूडेंट को जो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है वो दूसरे से अलग है. कोई सेम प्रोजेक्ट किसी और स्टूडेंट को नहीं दिया जा रहा है. इन दैट केस प्रोजेक्ट विल बी यूनिक. प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट नॉट नल और यूनिक होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी की कोई और फील्ड यूनिक नहीं हो सकता. कोई दूसरा फील्ड भी यूनिक हो सकता है, कोई दूसरा फील्ड भी नॉट नल हो सकता है. ठीक है, तो यूनिक कहने का मतलब है कि उस कॉलम में जो वैल्यू आ गई वो किसी और रिकॉर्ड में नहीं रहेगी. फॉर एग्जांपल, एज गिवन एग्जांपल कि ईच स्टूडेंट इज गिवन अ सेपरेट प्रोजेक्ट, सो इट मींस
कि वो प्रोजेक्ट जो है किसी और स्टूडेंट के रिकॉर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज द यूनिक की इसको बोलते हैं। ठीक है, now talk about the primary key and foreign key. I repeat, because it is the most is a say pivot to the relational database system. Foreign key and primary key. तो primary key क्या होता है? With which we can uh, identify a record. ठीक है, किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट के नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर से डिफाइन कर सकते हैं, एक व्हीकल को उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द प्राइमरी की। और व्हाट अबाउट द फॉरेन की? फॉरेन की मींस in technically term it is called the referential integrity, means we have a table here, ये अभी हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट का टेबल है, आई कैन शो यू व्हाट इज इट, इसके ऊपर ही काम किया हुआ। सॉरी, फ्रॉम EMP। सो ये टेबल मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, बट आई विल क्रिएट इट अगेन ना। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम DPT। So there are four departments, and each employee belongs to a particular department. Okay, so department number is a primary key here with which we can identify any department, and each employee belongs to a department, किसी एक डिपार्टमेंट को को बिलोंग करता है। लेकिन इसका डिटेल यहाँ नहीं रख के हमने कहाँ रखा हुआ है, दूसरे टेबल में रखा हुआ है। सो जो हमने कहा था, जो इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन का एनोमली यहाँ नहीं होगा। सपोज we have a department where there is no employee, no problem. You look at here, department number 40 has no employee. We can add a department here without any problem. Okay, we can keep it. Suppose the name of department number, so this department research has been changed from Dallas to some other place. We have to make the change at one place only. We don't have to put the Dallas here on the everyone. Okay, just with the department number is still will be 20, but the location may be updated. हमें यहाँ पर हर एक के सामने में वो लोकेशन को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो दिस इज, तो ये जो LOC है ये क्या हो गया, इसको आप बदल ले रहे हैं, लेकिन इस टेबल में हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और डिपार्टमेंट नंबर ये क्या है, ये फॉरेन की है, इसका प्राइमरी की और इसका ये क्या है, एक रिकॉर्ड है। ठीक है, यानी कि हम किसी एम्प्लॉय को ऐसे डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, सो इफ यू पुट डिपार्टमेंट नंबर से 70 फॉर ए पर्सन, हम ऐसा इन्फोर्स कर सकते हैं टेबल में कि वो नहीं ले। ठीक है, इट विल टेक ओनली फ्रॉम हियर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। I hope everyone understood the syntax and the data type. Okay. Has anyone any question? Just put it in the chat box. Okay. So this two table we are going to create. So how to create a table? How to create a table? So this is, I can run the whole thing in one go, but I will be doing it one by one. Okay. So for the sake of visibility, I will be doing it on एसक्यूएल वर्कबेंच। आप यहाँ पर भी कमांड लिख सकते हैं, जो हमने पिछले दिन भी दिखाया था कि आइदर यू वर्क ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट, आइदर वर्क ऑन एसक्यूएल वर्कबेंच। ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग। ओके, जस्ट वेट, इट इज स्टार्टिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
यहाँ पर कमांड लिखना है, आप वहां लिखे यहाँ लिखे, डजेंट मैटर, है ना। आपने क्या करना है, यहाँ से एक स्क्रिप्ट का नया फाइल ओपन कर लेना है और वहां पर लिखना है, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ लिखें, आई विल बी राइटिंग हियर, आई थिंक ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है, इट इज मच मोर क्लियर टू ऑल। ओके, सो व्हाट टू डू टू क्रिएट ए टेबल, यू शुड हैव अ डेटाबेस। एक डेटाबेस के अंदर ही टेबल क्रिएट करते हैं, है ना। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट, बिकॉज मेरे पास यह टेबल ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा नहीं बना सकता हूँ, बनाऊंगा तो मुझे नेम नेम चेंज करना पड़ेगा, देयर इज नो नीड फॉर इट। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस, क्रिएट डेटा, पहले जो भी अवेलेबल डेटाबेस है उसको मैं दिखा देता हूँ, शो डेटा बेसिस। दिस स्टेप इज वेरी वेरी डिफरेंट इन ऑल द डिफरेंट टूल्स, ऑरेकल में, एसक्यूएल सर्वर में, DB2 में, पोस्टग्रे में। ये जो कमांड, ये सब जो कमांड होती है एडमिन वाली, ये चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं, नॉट डिफिकल्ट बट डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, रेगुलर में से क्रिएट स्कीमा जैसा कुछ कमांड होता है, उसका यूज करना पड़ता है। हियर वी कैन वेरी सिंपल, सो डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, सिंपल। सो आई विल बी क्रिएटिंग EMP DPT99 समथिंग, कुछ ऐसा नाम रखते हैं, सो दैट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर। सो command will be create database, uh, create database and the name of database. So I want creating emp underscore dpt से 99, ठीक है। मैं एक अलग नाम से इसको बना रहा हूँ, ठीक है। क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड, मीन्स कि एक नया डेटाबेस बन गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिख रहा है, वन रो इफेक्टेड, इसका मतलब क्या है कि किसी टेबल में इंफॉर्मेशन चला गया, कि एक नया डेटाबेस बन गया है ना। डेटाबेस के रिकॉर्ड भी किसी टेबल में रखे गए होंगे, दैट इज व्हाई इट इज सेइंग वन रो इफेक्टेड। अब ये पुराना वाला कमांड अभी रन करते हैं, सो डेटाबेसेस, यस, यू हैव हियर emp dpt99। अब ये टेबल हमें इस डेटाबेस के अंदर में बनाना है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट, श्योर, समझ में आ रही है ना सबको, या तो अब क्या करना है, हमें इस emp dpt को सेलेक्ट करना है, बिकॉज हमें इसी के अंदर में ये टेबल बनाने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी हैव टू सेलेक्ट इट। कैसे सेलेक्ट करना है, यू कैन राइट यूज, यूज उसका नाम लिख दो, emp अंडरस्कोर dpt99, ठीक है। वेरी सिंपल कमांड, क्रिएट डेटाबेस का कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम इज वेरी सिंपल, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस and name, like I have just created emp underscore dpt99, write it here or write it at the SQL workbench, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्रिएट किया, शो का कमांड यहाँ पर लगा देता हूँ, शो डेटा BA, यहाँ पर ऐसे इंटर करने से नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, ओके। सो these are the different database I have created, education, business, इंफॉर्मेशन स्कीमा, ठीक है। 99 वाली यहाँ पर बन गई है, ठीक है। सो आइदर राइट हियर और राइट हियर, इट डजंट मैटर, इट इज बोथ आर सेम, ओके। फ्यू थिंग्स, द एडवांटेज इज हियर, आई विल शो यू, ठीक है। तो हमने बना लिया, अब हमें क्या कमांड देना है, वहीं पर काम करना है, तो हमें वो सेलेक्ट करना है। तो क्या करना है, यूज एंड नेम ऑफ द डेटाबेस वेयर यू वांट टू वर्क, सो यूज emp underscore dpt99, database change, this is our present database where we are now। I will be creating the command, अब मैं वहां पर कमांड लिखूंगा, ठीक है।
तो आई विल बी डूइंग इट ऑन द बोथ साइड, कुछ इधर करूंगा कुछ इधर करूंगा, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ पर करना है। तो ये कमांड हमारा रन हो चुका है, आई एम जस्ट रिमूविंग इट, और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ ताकि अब और कुछ यहाँ पर नहीं है। आउटपुट को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाले पार्ट को। सो आई वाज यूजिंग यूज emp_dpt, ठीक है, रन किया, यूज empdpt99, हाँ ये इस नाम से मेरा है नहीं, तो यहाँ पर रेड आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है ना। सो रन इट अगेन, नाउ ये ग्रीन हो गया, मीन्स इट इज ओके, ठीक है। यहाँ एरर दिया था अननोन डेटाबेस, है ना, इट वाज नॉट देयर। नाउ मेरे पास ये टेबल का क्वेरी पहले से लिखा हुआ है ना, आई विल बी सिंपली कॉपी पेस्टिंग इट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना एक बात, व्हेन यू क्रिएट प्राइमरी की, है ना, तो प्राइमरी की जब बनाते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होता है। प्राइमरी की एक्चुअली में हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला है, ये प्राइमरी की जो है आप टेबल के बगल में ही लिख दें, ठीक है। ये प्राइमरी की जो है आप क्या करेंगे, एक कमांड में क्या करेंगे, यू विल बी सिंपली राइटिंग प्राइमरी की यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, दिस प्लेस आप यहीं पर साथ में प्राइमरी की लिख देंगे, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप प्राइमरी की को नीचे में लिखेंगे, ठीक है, कांस्टेंट pkdept प्राइमरी की। तो दूसरे तरीके में क्या करना है कि एक नाम देना है, ठीक है, pkdept, ये नाम दे रहे हैं प्राइमरी की का, इस कांस्टेंट का, एंड दिस इज कीवर्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम, देन द कीवर्ड प्राइमरी की, और ब्रैकेट में लिख दीजिए कि कौन सा फील्ड को आप प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ डिपार्टमेंट नंबर को बना रहे हैं, ठीक है। तो there are two syntax. What is the difference between the two syntax? That if you want to make a primary key consisting of two fields, जिसको बोलते हैं कंपोजिट की, वैसा बनाना चाहते हैं तो ये रो लेवल वाले से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर लिख लेने दीजिए, मैं आपको एक जगह और लिख के दिखाता हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू make it dirty because I am going to run it, so I'm writing it as somewhere else, ठीक है, कहीं और लिख लेता हूँ। ठीक है, एक तरीका है प्राइमरी की लिखने का कि आप क्या करोगे, यहां पर ही प्राइमरी की लिख दोगे, प्राइमरी की, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग प्राइमरी की एट द रो लेवल, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड वे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्राइमरी की हियर, आप क्या करेंगे कि ये जो लास्ट सेमीकोलन लग रहा है ना, इसके बाद यहां पर, ठीक है, इसके बाद यहां पर ये लिख देंगे आप कंट्रोल भी, यहाँ पर नहीं, नीचे में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी इसके नीचे में लगा के और प्राइमरी की लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम लिख देंगे जिसको कि आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो। तो मैं बनाना चाहता हूँ एम्प्लॉय नंबर को, तो मैं यहाँ पर प्राइमरी की और एम्प्लॉय नंबर लिख दूंगा, ठीक है। लास्ट में कॉमा नहीं होना चाहिए, इंड है, सो यहाँ पर आपने एक कॉमा लगाना होगा, यू कैन सी द सिंटैक्स हियर, ठीक है, यहाँ लगेगा, इस वाले में नहीं लगेगा। तो ये हो गया दो तरीका, ये हो गया रो लेवल, और ये हो गया रो लेवल, सॉरी, इसको कॉलम लेवल बोले, है ना, रो तो यहाँ है एक्चुअली में कॉलम है, दीज आर द कॉलम नेम्स, एट्रीब्यूट बोलते हैं डीबीएमएस के टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम लेवल और ये हो गया टेबल लेवल, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर अलाउड, ठीक है।
हाँ, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम ये किया हुआ है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट पी के डीपीटी ऐसा लिखा हुआ है ना। आई टेल यू ये किस लिए है। अगेन आई से दिस इज नॉट नेसेसरी, है ना। ये आपने लिखा, अच्छी बात है, तो और नहीं लिखा तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन दोनों का अपना एडवांटेज होता है। अगर आप इस कंस्ट्रेंट का एक नाम रख देंगे, तो पी के डीपीटी एक नाम रख दिया, यू कैन हैव एनीथिंग, है ना। तो सिर्फ ये बता रहे हैं कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का नाम है डीपीटी, और वो प्राइमरी की है, इसलिए इस तरह से का नाम बना दिया है, ठीक है। यू कैन हैव एनीथिंग, कोई भी वैलिड वेरिएबल नाम यहाँ पर रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि लेटर ऑन आप प्राइमरी की को मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप टेबल बनाने के बाद चाहते हैं कि नहीं ये प्राइमरी की नहीं रहेगा, ये प्राइमरी की रहेगा, तो आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर बाय नेम हमने प्राइमरी की के कांस्टेंट का एक नाम रख दिया, तो बाद में हम ये कर सकते हैं, अल्टर टेबल ईएमपी डिलीट कांस्टेंट पी के डीपीटी ऐसा लिख देंगे, तो ये प्राइमरी की को हम डिलीट भी कर पाएंगे। दैट इज द एक्स्ट्रा एडवांटेज। सो इफ यू लाइक इट, इफ यू थिंक दैट यू विल बी नीडिंग इट, यू कीप इट, अदरवाइज जस्ट लीव इट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया ये कांस्टेंट का नाम क्यों रखे, और रखने का एडवांटेज क्या है, नहीं रखे तो क्या डिसएडवांटेज है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, फाइन, आई होप। तो अब इसे हमें क्या करना है, रन करना है। तो रन करने के लिए मैंने अलग से रखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। सो अब ये हो गया, ये दोनों का उस तरह से बना हुआ है। बट रिमेंबर वन वन थिंग मोर बिफोर रनिंग इट, ठीक है। इट इज अबाउट द फॉरेन की। फॉरेन की लगाने के लिए क्या करना पड़ता है कि लाइकवाइज उसी तरह से फॉरेन की लगाते हैं, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा वर्क लगना पड़ता है, ठीक है। मैं इतना दूर तक ही लेता हूँ पहले, समझ में आसानी से आ जाएगी। फॉरेन की लगाना है। अच्छा, पूरा का पूरा टेबल ले लेता हूँ, क्योंकि वो दूसरे टेबल में बना हुआ है। जस्ट ए मिनट, जस्ट टेक द सिंपल वन। थोड़ा नीचे आ जा। हियर भी आ, ठीक है। अब इसमें फॉरेन की लगाना, तो देखिए फॉरेन की लगाने का जो सिंटेक्स है, यू सी हियर, दिस इज हियर, वेरी सिंपल। आप फॉरेन की जब आप लगाएंगे, फॉरेन की भी इसी तरह लगा सकते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर बगल में लिख सकते हो, अदरवाइज आप नीचे में लाकर लिख दो, ठीक है। फॉरेन की, डिपार्टमेंट नंबर, रेफरेंस डिपार्टमेंट नंबर, ये देखिए, ये दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग वी हैव टू डू इन द फॉरेन की। फॉरेन की में हमें बताना पड़ेगा कि कौन है, कौन सा कॉलम है जो फॉरेन की है, तो डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है। रेफरेंस, ठीक है, ये फॉरेन की यहाँ नहीं लगाना है, दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। फॉरेन की कहाँ लगाएंगे, फॉरेन की लगाएंगे एम्प्लॉय वाले टेबल में, है ना, क्योंकि ये तो इसका अपना टेबल, अपना फील्ड है, ठीक है। तो एम्प्लॉय वाले में प्राइमरी की भी लगाएंगे, यहीं पर हम फॉरेन की लगाएंगे। जस्ट आई विल रिपीट, है ना। फॉरेन की क्यों लगाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर जो है इसको हम बना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये फॉरेन है ना, ये इसका अपना नहीं है, ये दूसरे टेबल का है। तो फॉरेनर यहाँ कौन है, इन ईएमपी में फॉरेनर जो है डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है। इट इज रिसाइडिंग हियर बट हैज द पासपोर्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। तो फॉरेन की क्या हुआ, ये रेफर कर रहा है इस वाले को, इसलिए यहां पर लिखना पड़ता है कि फॉरेन की कौन है, डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है। कौन से टेबल में है ये डिपार्टमेंट नंबर, डीपीटी में है, वहां उसका क्या नाम है, सेम नेम है, ठीक है।
नाम अलग हो सकता है ना। फॉरेन की वाला टेबल जो है जिसको रेफर करेगा दूसरी जगह, डेटा तो उसका वही रहेगा, लेकिन हेडर नेम नाम अलग हो सकता है। इट इज अलाउड, बट प्रिफरेबली आप कभी ऐसा नहीं करें। तो ये सिंटेक्स समझ ले। फॉरेन की कौन है? डिपार्टमेंट नंबर, दिस इज डीपीटीएनओ, ये फॉरेन की है इस टेबल का। इसका ओरिजिनल कहाँ है? मतलब किस टेबल का ये मेंबर है? एक्चुअल मेंबर किसका है? ये डिपार्टमेंट नाम वाले टेबल का है। ठीक है, तो ये रेफरेंस करके लिखना पड़ता है कि कौन से टेबल में है ये ओरिजिनली। तो ये डिपार्टमेंट पे टेबल में है। वहां क्या नाम है? उसका नाम है डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर द फॉरेन की। फॉरेन की नेम ऑफ फील्ड, आई रिपीट once again, name of the field which is foreign, then the keyword है ना, references और foreign की, ये दोनों जो है keyword है। references, then the name of the table, the outside table, and the field. Okay, so it is same here, that is fine। ठीक है। अब इसे हम बनाएंगे। और एक चीज और याद रखना है बिफोर क्रिएटिंग इट, बिकॉज here you are referring to a table, this one, so this table must exist before, ये पहले बनना चाहिए उसके बाद इसको बनना चाहिए। क्योंकि आप बोल रहे हैं किसी दूसरे टेबल के ऊपर ये डिपेंड करता है, तो वो टेबल पहले बनना चाहिए। सो इफ यू वांट टू क्रिएट इट, पहले हमें ईएमपी नहीं बनाना पड़ेगा। पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले हमें डीपीटी बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो जस्ट क्रिएट इट। यहीं बना लेते हैं, है ना। सो वी आर क्रिएटिंग एंड जस्ट रन इट। emp int, देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया। क्या हुआ कि हमने यहाँ पर किसको बनाने का कोशिश किया? पहले emp को। यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है। एरर कोड फेल टू ओपन द रेफरेंस टेबल dpt, ये है ही नहीं, है ना। दैट इज वाई ये नहीं क्रिएट किया, यू कैन सी। ठीक है। सो हमें पहले किसको बनाना पड़ेगा? हमें पहले dpt को बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद ये बनेगा, तो व्हाई नॉट वी रन दिस टू क्वेरी एट वन टाइम। यहाँ पर ये एक एडवांटेज है कि आप मल्टीपल क्वेरी एक बार यहाँ पर टाइप करके एक बार इसको रन कर सकते हैं। सो ग्रीन एंड रेड क्या है? यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल कोड, चेक द सेमी कोलोन और समथिंग छूट गया है। ठीक है, बिकॉज आई वाज जस्ट चेंजिंग इट, क्रिएटिंग है। अच्छा, ये जो कमेंट था वो यहाँ पर आ गया बिकॉज ऑफ दैट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुका है ना। तो इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ। यानी तो आपको जितना दूर रन करना है उस उतना को आप सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज ये पूरा रन करता है यहाँ पर, है ना। सो आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दैट मच एंड देन क्लिकिंग हियर। नाउ इट इज ग्रीन। जस्ट चेक वेदर बोथ हैज बीन क्रिएटेड और नॉट। सो आप यहाँ पर कर लो। कैसे पता चलेगा? शो टेबल्स। ठीक है, टू टेबल हैज बीन क्रिएटेड। अब देखो क्या इस टेबल में डेटा है या नहीं है। हमने कोई डेटा तो नहीं डाला है। ठीक है। डेटा सारा देखने के लिए क्या कमांड होता है? सेलेक्ट एज छूट गया, सेलेक्ट ऑल, asterisk mean all the columns from emp, no data is there, है ना। और dpt, no data is there, so we have created table but there is no data in it। so व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल? टेबल कैसा बना है, इसमें कौन से फील्ड है? अगर डेटा नहीं है ठीक है, लेकिन ये टेबल का स्ट्रक्चर तो देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम है, कौन सा उसका डेटा टाइप है, ये देखना चाहते हैं। तो देर इज वन कमांड DESC, दैट इज डिस्क्राइब एंड जस्ट गिव द नेम ऑफ द टेबल। सो ये ऐसा बना है। EMPI नंबर इंटीजर है, नल नॉट नल है, की क्या है? प्राइमरी है ना।
इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, सबका नल है, ठीक है। उसी तरह डिस्क्राइब कर लो, डिस्क्राइब डीपीटी को, ठीक है। ये यहाँ पर प्राइमरी की है ना, और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये कहीं डिपेंड करता है, ठीक है। सो we have created the table and created we have seen the structure. I hope everybody can understand it. समझ में आ रही है सबको कैसे टेबल बनाते हैं? नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें हम डेटा फिल करेंगे, लेकिन यहां तक सभी को समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या एक टेबल और बनाए? ओके, एक टेबल और बनाते हैं, है ना। राइट एनीवेयर, कहीं पर भी पहले आप अपना रफ लिख सकते हो, है ना। सो यहीं पर लिख लेता हूँ रफ। जस्ट क्रिएट एक टेबल बनाना है, तो just make some space here and I will be creating one more table, है ना। क्रिएट टेबल से लैंग्वेज को मैं एसक्यूएल कर देता हूँ, ठीक है। The software I'm using is Notepad++. It's a very simple code editor. बहुत ज़्यादा इसमें फीचर्स नहीं होते as compared to Visual Studio Code, है ना। ये बहुत ज़्यादा एडवांस होता है. It has a lot of features here, but for the timing आप सिंपल वर्क के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं. इसमें कोई उस तरह का इंटेलिजेंस नहीं होता है. इंटेलिजेंस होगा अपने आप एक कोड कंप्लीशन होने लगेगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कम होती है. क्रिएट टेबल, आई जस्ट वांट टू क्रिएट प्रोडक्ट्स. सो दिस इज द टेबल आई एम गोइंग टू क्रिएट. क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स. अब सबसे पहले क्या देना है, एक फील्ड का नाम. तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या रखना है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट सो यू क्या होगा. पहला मैं रखना चाहता हूँ प्रोडक्ट आईडी. ये क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या दे देंगे इसको, इसी तरह दे देते हैं डेसिमल. 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना. इस तरह का चीज देना चाहते हो तो दे सकते हैं डेसिमल, ठीक है. और ये बताना चाहते हैं कि इसमें कोई पॉइंट नहीं होगा, है ना. डेसिमल है लेकिन डेसिमल प्लेस एक भी नहीं रहेगा. तो वी कैन गिव इट कि से 6,0, 6 डिजिट तक का वैल्यू लेगा. और ये हमारा प्राइमरी की होना है, तो सिंपल ये यहाँ पर कॉमा भी नहीं लगेगा. और सिंपली आई जस्ट वांट टू मेक इट अ प्राइमरी की, तो यहीं पर लिख देंगे प्राइमरी की, ठीक है. रिमेंबर दिस दिस कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग इज केस इनसेंसिटिव. केस सेंसिटिव नहीं होता. आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, इट डजेंट मैटर, ठीक है. तो प्राइमरी की हो गया. नाउ लगाएंगे कॉमा, ठीक है. अब यहाँ पर लगाना है कॉमा, सेमीकोलन नहीं लगाना है. प्रोडक्ट आईडी हो गया. अब क्या रखना चाहते हैं नाम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम. प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम. ये कैसा रहेगा, कैसा रखना चाहिए, वेर कैर. कैरेक्टर रखना है, नाम रखना है वेर कैर. देखिए यहाँ पर वेर कैर 2 भी आ रहा है. वेर कैर 2 माइस्क्यूएल में नहीं रहता है. वेर कैर कितना, अभी 10 लेते हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल, अगर ज्यादा होगा इट विल होल्ड इट, ठीक है. और इसमें एक और लिख देते हैं, नॉट नल, ठीक है. इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का नाम देना ही है, आप बिना नाम का प्रोडक्ट नहीं रख सकते. और क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस. प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है. ये कैसा होगा, ये न्यूमेरिकल होगा, तो डेसिमल लेते हैं, ठीक है. डेसिमल ले ले, कितना ले ले, थाउजेंड्स में वैल्यू होगी, 10,000 में वैल्यू होगी. तो इसको भी ले लेता हूँ 6 और डेसिमल में
टू प्लेस है ना, रुपीज एंड पैसा, ठीक है, नॉट नल, विदाउट प्राइस हो सकता है अगर, लेकिन नहीं चलेगा, हाँ प्राइस नहीं रहे बाद में एंट्री करना है, तो ऐसी हालत में हम डिफॉल्ट नल लिख देते हैं, ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो नल रहेगा। एनीवन, कोई और फील्ड इसमें चाहते हैं, कोई भी सजेस्ट करो और क्या रखना चाहते हो उसमें, प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है, एनीथिंग और, क्या और रखा जा सकता है? we can see we can keep the product category, फूड आइटम है, कॉस्मेटिक्स है, क्या है ना, बट फॉर द सेक ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट इज ओके, है ना। तो इसको अभी यहाँ पर प्राइमरी की वहां पर लगा ही दिया है, सो विल बी क्लोजिंग द, अगर हम इसे क्लोज करेंगे तो लास्ट वाले का कॉमा यहाँ से आप हटा दोगे, है ना, ठीक है। कैटेगरी और ग्रेड, हाँ यस, यू कैन हैव इट, है ना। तो आप एक प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैट लगा सकते हो, और ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक वेर कैर लगाएंगे, और कैटेगरी का आप एक अलग से टेबल बना सकते हो, है ना। तो हो गया, प्रोडक्ट का टेबल बन गया। अब एक टेबल बनाता हूँ कस्टमर का, है ना। तो जस्ट जस्ट एक बना कर दिखाता हूँ, है ना, कि वेदर इट इज ओके और नॉट, जस्ट कॉपी इट, जस्ट वांट टू क्रिएट इन दिस वेरी, अभी जो हमने अपना बना के रखा हुआ है इसी के अंदर इसको भी बनाना चाहते हैं, तो मेक इट एनीवेयर, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी लिख के इसको चला सकते हैं, ठीक है। एंड शुड बी, ब्रैकेट के बाद एक सेमीकोलन रहेगा, ठीक है। सो वी हैव क्रिएटेड दिस टेबल आल्सो, DESC डिस्क्राइब करके देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो वी हैव क्रिएटेड टेबल, है ना, जो स्ट्रक्चर हमने दिया उस पर बन गया, इसको हमने प्राइमरी की बनाया है। डिफॉल्ट नल नहीं लिखो तो भी होता है ना, और इसका नल हो गया, नहीं लिखने पर डिफॉल्ट नल खुद ही हो जाता है, ऑटोमेटिकली ले लेता है। सो इफ यू राइट इट ओके, नॉट राइट इट स्टिल इट्स अ डिफॉल्ट नल, ओके। सो आई होप टेबल क्रिएट करना आ गया है ना। सो नेक्स्ट वर्क रहेगा कि इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। टिल नाउ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और क्वेरी? And those people who are who want to interested in कि Oracle में कैसे काम होगा, you can go to this site and you can download, आप डायरेक्टली सर्च में डाल दो, है ना, Oracle database XE डाउनलोड, है ना, फ्री वाला वर्जन का नाम होता है XE, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसी साइट पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आप सिंपली लिख लो डाउनलोड और डायरेक्ट XE, है ना, इसको आप डाउनलोड में लिख दीजिए। ठीक है, फर्स्ट चॉइस में आप पहुंच जाइए, इट विल टेक यू देयर। लेटेस्ट वर्जन इज 21C एंड इट विल टेक अराउंड 2 GB ऑफ स्पेस, ठीक है, करीबन 2 GB स्पेस लेगा ये, इट इज वेरी बिग। एंड द कमांड दैट आई एम रनिंग हियर इट विल बी ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, varchar की जगह varchar 2 लगाओगे, डेसिमल नंबर वैसा ही होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। एंड द क्वेरी, जो एसक्यूएल क्वेरी में लिख रहा हूँ वो सेम है, जो यहाँ है वो यहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है। सो इंडिया, ये ऑटोमेटिकली पहचान लेता है कि आप किस कंट्री से, आईपी एड्रेस से फाइंड आउट कर लेता है कि आप कहाँ से इसको एक्सेस कर रहे हैं, ओके। So let me conclude today's class and we will be inserting data in the next class. Okay. Okay. So we will be tomorrow. We will be inserting data and doing the query. Inserting is very very simple command. It will hardly take a few minutes to know how to insert data. There are two way of writing commands, and we will be start querying on it. है ना, different type के query करेंगे इसके ऊपर, aggregate and different type के functions देखेंगे. Okay, I hope everyone found this session useful.
let me conclude the class. I'm just stopping my sharing.